first of all, thank you so much for inviting me. I'm grateful today. We are live, and there are a lot of people. They were asking me to come live to solve their many queries. So I hope they will also join us, and they will, whenever they will ask, we will give a proper solution for them. So first, I want to introduce myself. I'm Swati Jain, and I belong basically from a very small town called Tikamgarh. I don't know you heard or not. And I have been graduate from Bhopal MP, and I have done my BTech, MTech, my all the degrees from Bhopal. And in 2014, I got married and I shifted to Bangalore. And when I shifted to Bangalore was totally new for me. From the language to सारे लोग ही मेरे लिए नए थे वहाँ पे. And when I shifted, the journey started with Zumba. Firstly, like other engineers, I also tried for IT, and I got a job in IT sector. And I started my career in 2014 with the IT firm called CGI. I started working in CGI as a software engineer, and till from 2014 to 2016, I was working in CGI. At the same time, in 2014 mid, almost in 2014 December, I was doing some paintings at my home. Whenever I was getting a free time, I was doing some paintings, some wall paintings I tried. You know Akash, right? So he was also very much fond of paintings. So we were doing, मतलब अपने घर की दीवारें ही हम गंदी करते रहते थे. So one day my friend came to my house and he asked me, he said, I'm planning to open one dance studio, and can you please do these kind of paintings for my studios? So we were surprised, चलो अब तो order भी मिलने लगे. So we went there, and तभी हमने उसका मतलब studios he started, and we did some wall paintings for him. So or those paintings were related to dancing. And I have seen there was one batch he started that is called Zumba, and he asked me to join that batch. I joined, and I was literally dancing very well. So that instructor only asked me, why don't you do the training? I mean, you are dancing very well. You can also train people. And मुझे मतलब लोगों को जैसे before my IT career, I was teaching in one college in Bhopal only. So मुझे मतलब सिखाना पसंद था. So I said, okay, let me try this. So मैंने फिर वही training, I completed my training, Zumba training in Bangalore. And then after few months with the job, part-time I started teaching Zumba in few studios and few gyms. And then where I was living in Bangalore, I thought, okay, let me ask all the apartment ladies if they are interested. We can start batches and all. So they were very excited because that time Zumba was, बहुत पुराना नहीं, मतलब एक नया फॉर्म ही था. So people were interested, क्या है देखते हैं चलो. तो then I started like in apartments में भी मैंने सिखाना शुरू किया. And slowly I was with the job I was teaching 1 or 2 classes because with the IT job it was a little difficult for me to traveling and going, but it was my passion. So I was very fond of fitness from my childhood because I have seen my mother and father, they are doing walking, yoga and many other things. And they are very from it. Since childhood I have seen at 4, मतलब like 4:30, 5 o'clock उनका दिन शुरू हो जाता है. So from childhood I was like कि हाँ fitness तो एक मतलब हमारे डेली रूटीन का पार्ट होना ज़रूरी है. And then सिखाते like after almost 2014 to 17 I got pregnant
and then my daughter, she came into our life, and we blessed. During pregnancy also, I never quit my Zumba. Yes, when I got pregnant, I was literally tensed. मुझे मतलब एक साइड बहुत खुशी थी, बट दूसरे साइड मुझे ये लग रहा था कि यार अब क्लासेस और इन सब का क्या होगा. देन आई कंसल्टेड माई डॉक्टर कि यार मैं ये नहीं छोड़ सकती. तो एंड शी वाज लाइक कि ठीक है डांस आप कर सकते हो, बट टीचिंग विल बी थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा. देन आई सेड नहीं, आई विल डेफिनेटली मैनेज. व्हेनेवर यू विल आस्क मी टू स्टॉप, I'll find something else. But fitness related to, she was also happy. She said no, fitness is really good. If you want to continue, you can continue, but I'll guide you. So she was very good doctor in Bangalore, and she was guiding me कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है. So at that time I was teaching one class in a day. I was not teaching more than one class, but during pregnancy till 8 months I was teaching Zumba. Yeah, my daughter is also very proud of dance, उसको बहुत ज़्यादा मतलब she likes dancing. तो एंड पीपल वर सरप्राइज इन माई अपार्टमेंट. मतलब जैसे मैं ना पहले शुरू में तो जब मैं जाती थी तो आई वॉज लाइक कि ज़्यादा लोग मुझे देखें ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसर्न होते हैं. मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट उनको कंसर्न होता है अरे तुम प्रेग्नेंट हो, नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो. बट हाँ, दैट टाइम everybody supported me. My family also very much supported, my in-laws, everybody supported me, and I continued till 8 months. Then Swara born, and after my maternity, when I came back from maternity, when my daughter was almost 4 months, then I asked my doctor again if I can resume back. She said yes, slowly you can resume. And then I decided to quit my IT job, and I continued Zumba. So I was a full-time instructor till before this lockdown. I was taking classes in apartments, gym studios in Bangalore. And now, as of now, I'm teaching my online classes. So yeah, this was my awesome. from beginning to awesome journey. Well, I still remember that your daughter used to come in the classes, and she used to, because over here the maids, they don't stay back after 6, right? Can you hear me? Yeah, I can hear you. So I've seen your daughter coming with you in all your classes. So would you like to tell us how she used to come? She was so young. Yes, I remember actually when Swara was 3-4 months, we were not having any support. I mean to say, my family members, because they are having their own commitments. So my mom-in-law was passed away due to cancer, and the situation was not in our favor. But me and Akash somehow we managed. And when Swara was 4 months, you won't believe, I was literally very much committed to my classes. So I tried never to skip any single class. So when she was 4 months, I carried her. Kabhi I used to drive my two-wheeler because in the Bangalore traffic, right? So two-wheelers, I was traveling with a two-wheeler, but whenever I carried Swara, I book a cab. और आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, बट मैं उसको हमेशा अपने साथ में लेके जाके, और शी वॉज ऑल्सो वेरी मच कोऑपरेटिव. फ्रॉम दैट सिंस 4 months she never she was also enjoying. She was watching me and other ladies, and सब बहुत सारे लोग उसको ही खिलाना शुरू कर देते थे. बट it was part of my life, कि थोड़ा मुश्किल था, बट आई ट्राइड कि जैसे अभी शुरू से उसको हम उसको आदत होगी तो वैसे करना बाद में मुझे इजी होगा. तो हम लोग मैं उसको लेके जाती थी, एंड शी वो भी बड़ा एंजॉय करती थी हमारे साथ.
तो हाँ, शुरू से मैंने उसको मतलब व्हेन शी वाज 9 months तभी मैंने उसको, फिर देन आई फाउंड सम डे केयर की थोड़ी देर के लिए, बिकॉज आई वाज नॉट वर्किंग लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टू सिंस इवनिंग, इट्स नॉट अ ऑफिस जॉब, सो आई हैव टू गो अराउंड मनी इन अपार्टमेंट जिम, तो अलग अलग जगह आई यूज टू ड्राइव सो मच, तो आई पुटेड हर इन डे केयर फॉर सम टाइम, और ऐसे somehow I managed, but I never left my Zumba and my fitness thing because of yeah, we have in many ladies like I have seen few ladies, they are having this thing like कि बच्चे छोटे हैं अभी नहीं कर सकते, तो मैं तो यही बोलूँगी यार कि 1 घंटा मतलब निकालना तो बहुत ज़रूरी है, राइट, कि 1 घंटा अपने लिए, अगर 24 आउट ऑफ 24 आवर्स 1 घंटा तो अपने लिए होना ज़रूरी है, जिसमें आप सिर्फ अपना फिटनेस से रिलेटेड या अपने वेट लॉस से रिलेटेड कुछ भी करना, आई मस्ट से कि करना चाहिए. Exactly. So, I've seen, I'm following you that all your ladies, they are sweating and they are glowing like anything during these days also when we are getting so lazy, right? So, how are you pushing these ladies to be so active? They are getting up early and they're doing these online classes, because online classes is something that you don't get that feel, right? Because in the room with the high music. So how are you pushing these ladies to be so punctual and doing that to the same into? Right. So मैं एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस अभी मैं जैसे देख रही हूँ, बहुत सारे पीपल लाइक देयर आर मैनी इंस्ट्रक्टर, दे आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू गेट द पीपल, लाइक उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है. ऑनलाइन भी आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, द नेटवर्क आई हैव एज ऑफ नाउ, लिटरली मैं यही बोलूँगी कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है पहले, तो अभी दैट्स व्हाई आई हैव दिस मच ऑफ पीपल ऑनलाइन. उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को, जैसे जो मेरे पास पहले आते थे सीखने या मैं जिनको ट्रेन करती थी, तो मैंने उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसलिए इंस्पायर कर पाया क्योंकि शुरू में आई ऑल्सो नॉट वेरी कन्विंस्ड विद द ऑनलाइन. एक्चुअली जब व्हेन द लॉकडाउन हैपेंड, I never thought I will start online classes, but few ladies asked me, many instructors are trying online classes, why don't you try? So I thought, okay, let me give a try. So मैंने 1-2 दिन I was taking a free classes for 1 month almost. I tried free classes and I have seen people here, few ladies were interested, जो मेरे जैसी हैं, जो फिटनेस नहीं छोड़ सकते, तो उन्होंने ट्राई किया एंड दे वर क्वाइट हैप्पी कि हाँ ठीक है, तो 1-2 दिन 4 दिन थोड़ा स्ट्रगल होता है शुरू में, बिकॉज म्यूजिक नहीं समझ में आ रहा, स्टेप्स नहीं समझ में आ रहा, बट वंस यू स्टार्ट तो कुछ दिन में आपको यू आर यूज्ड टू कि हाँ अब तो करना ही है, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लासेस के देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो, बिकॉज आपको घर से बाहर नहीं जाना कहीं भी, राइट. आप समटाइम्स इफ यू आर नॉट इन मूड, यू डोंट नीड टू चेंज योर क्लोथ्स, ठीक है, आप मतलब एक सिंपल सा कुछ भी पहन के कैमरा ऑफ करना है, कैमरा ऑफ करके भी आई सजेस्ट कैमरा ऑन रखो, तो जिससे मैं पुश कर पाऊँ मैं लोगों को कि क्या कर रहे हो, मैं भी देख पाऊँ. बट देयर आर लॉट ऑफ लेडीज जो अपना कैमरा बंद कर लेते हैं, तो मैं उनको हमेशा ऐसे बोलती रहती हूँ, यार कैमरा ऑन करो, मैं भी देखती कि आई डोंट माइंड वॉट एवर बैकग्राउंड यू हैव, बच्चे रो रहे हैं, मुझे पता, आई कैन अंडरस्टैंड, बट करना है तो आप मतलब ज़रूरी है. तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको कुछ बेनिफिट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं. कपड़े चेंज नहीं करना, बाहर नहीं जाना. देयर आर लॉट ऑफ लेडीज अर्लियर जैसे जो क्लास में आती थी, तो उनके कुछ घर में कमिटमेंट्स हैं कि इस टाइम पे उनके हस्बैंड को ये चाहिए, या खाने का प्रॉब्लम है, बच्चों के प्रॉब्लम है, तो अभी ये सारी स्ट्रगल्स नहीं है, राइट. वो जस्ट उठो और शुरू हो जाओ वो वाली बात है. तो मॉर्निंग बैच में देयर आर लॉट ऑफ लेडीज, आई हैव अ बैच एट 7 to 8 मॉर्निंग इन द मॉर्निंग. तो मैं उन लोगों से यही बोलती हूँ, यार 10 मिनट 15 मिनट पहले उठ के बस कैमरा ऑन करके 1 घंटे आपको जुम्बा करना है. तो इजी है यार, इससे ज़्यादा इजी और क्या हो सकता है, राइट. कहीं जाना नहीं है, कोई ट्रैवलिंग नहीं है, घर में ही करना है. तो देयर आर पीपल फ्रॉम सिंस लास्ट ईयर, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग द ऑनलाइन क्लासेस विद मी, अभी भी आ रहे हैं.
तो दे आर वेरी मोटिवेटेड और उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऑनलाइन में देयर आर लॉट ऑफ लेडीज जिन्होंने अपना वेट लूज किया है, क्योंकि लॉकडाउन में यू नो द रूटीन राइट, कहीं आप बाहर जाना नहीं है, कुछ और करना नहीं है, जिम्स आर ऑल्सो नॉट ओपन, तो उनको ये करना बहुत ईजी लग रहा है। और देयर आर लॉट ऑफ फ्यू न्यू लेडीज ऑल्सो ज्वाइंड जिन्होंने कभी जुम्बा किया ही नहीं है, तो उन्होंने भी मतलब ट्राई किया कि हाँ ऑनलाइन थोड़ा उनके लिए इजी है, जिनके लिए बहुत, कुछ लोगों के लिए तो बाहर निकलना पहले बहुत मुश्किल था बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन हाउस कमिटमेंट्स की मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस है, ये है वो है, तो ऑनलाइन उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि अब कहीं नहीं जाना, बस सुबह उठ के और सीधे शुरू हो जाओ। So yeah. Great. So you take these classes on Zoom, right? Yes, I use Google Meet. Google Meet. Okay. Yeah. Okay. Google Meet. Okay. So teaching online step by step. So how you manage these? As you said that for 1 month you took 3 classes. That I guess through these classes you trained yourself also that how to train online, right? Manage, Because it's, yeah, right. जब when I started I was using Skype because उतना आइडिया भी नहीं था ना शुरू में कि क्या करना है, so I started with Skype, so there are lot of you know struggle like कि कभी म्यूजिक उतना प्रॉपर नहीं है, फिर कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और when I started I was having only 5-6 people. ठीक है, that those ladies are from my old batch, like from Bangalore only. So I started with 4-5 people. Then I क्या बोलना चाहिए कि मैंने कुछ जैसे कुछ सर्कुलेट किए, कुछ पोस्टर्स डाले लोगों को कि हाँ वी कैन ट्राई, मतलब आई वॉज ऑल्सो ऑन द ट्राई पीरियड बिकॉज मैंने आई डिड नॉट कमिटेड कि वी विल कंटिन्यू, दैट्स व्हाई आई डिड फ्री क्लासेस, टोटली फ्री क्लासेस, आई वॉज नॉट चार्जिंग एनीथिंग, आई थॉट ओके लेट्स गिव अ ट्राई, आई स्टार्टेड विद स्काइप, देन कभी कभी तो यू नो हम लोग जब व्हाट्सएप पे वी कैन ऐड 8 पीपल, so I was using 2 phones, mine and one more other phone I was using, and I was 15 minutes तक मैं सबको ऐड करती थी। फिर लोग पिंग कर रहे हैं मुझे ऐड कर लो, कुछ लोग मतलब अरे मैंने उठा नहीं पाया वीडियो कॉल, तो आई डिड दैट ऑल्सो। फिर स्लोली जब 1 महीना हो गया इसके बाद आई रियलाइज कि हाँ मतलब दिस कैन वर्क, मतलब पीपल वर लाइक कि नहीं यार करते हैं, यू स्टार्ट चार्जिंग, वी आर रेडी टू पे, आप चार्ज करो हमें बट कंटिन्यू करना है। देन one of my friend, she is also instructor, she said I'm using Zoom and I'm using Google Meet as well, so I found Google Meet little convenient for me, and मैंने वही ऑनलाइन क्लासेस में जो लोग आ रहे थे उनके सब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, सर्कुलेट किया पोस्टर्स कि वी आर डूइंग, ट्राई करते हैं, तो देन आई स्टार्टेड चार्जिंग ऑल्सो एंड पीपल वर लाइक क्वाइट हैप्पी कि हाँ मतलब इट इज़ वर्किंग वेल, तो देन वी स्टार्टेड मीट पे क्लासेस करना हमने शुरू किया, देन आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन मीट। so it was a learning experience for you also, right? Yeah, it was a learning experience for you also, like from Skype. Then बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज कुछ नए लोग जिन्होंने कभी डांस नहीं किया है, वेरी न्यू टू फिटनेस, तो आई टोल्ड देम कि मतलब आई ऑलवेज से जुम्मा इज नॉट यू नो इट इज नॉट अ डांस फॉर्म, इट्स एक्सरसाइज, यहाँ पर कोई किसी को नहीं देख रहा है, और वैसे भी जब हम करते हैं तो हम अपने आप को ही देखते हैं, इतना नॉट सेटिंग एंड और हमें किसी को देखने की वैसे भी जनरल क्लासेस में भी फुर्सत नहीं होती, तो मैं यही बोलती थी कि यार आप कर रहे हो, आपको अभी तो ऑनलाइन में ये फायदा है कि कोई भी आपको नहीं देख रहा है, कैसे भी कूदते रहो, तो दे आर लाइक कि हाँ यार ये बात तो सही है, ठीक है हम कर सकते हैं। तो स्लोली इन द बिगनिंग एवरीबडी इज लाइक कि हाँ थोड़ा स्ट्रगल तो होता है, कर नहीं पा रहे हैं या स्टेप नहीं समझ में आ पा रहा है, तो देन स्लोली वंस दे ज्वाइन नो आफ्टर 2-3 क्लास ओनली दे आर वेरी यूज्ड टू, मतलब उनको बहुत मजा आने लगता है। तो और वैसे भी अगर आप कभी भी कोई भी फिटनेस फॉर्म करते हैं या आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव सम टाइम, मतलब एक दिन में तो डेफिनेटली नहीं होगा, आफ्टर अ वीक यू कैन रियलाइज कि हाँ मतलब अब मज़ा आने लगा है। तो एंड कंटिन्यूटी, मैं सभी से हमेशा यही बोलती हूँ, मेरी जितने भी बैच में लोग आते हैं, कंटिन्यूटी इज रियली इम्पॉर्टेंट, लाइक ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन कर लिया इनफ है, 3 दिन कर लिया इनफ है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि 1 घंटा हमें करना ही है एवरी डे।
This should be the spirit. I think that for doing these high energy dance forms, what should take, right? Like what should be the start of the day? What should we eat in the morning and then go for in the these? morning अभी तो ऐसा है ना महर, इन द ऑनलाइन क्लासेस मैंने बताया ना, जैसे ये ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस में लोग क्या कर रहे हैं, 7 o'clock पे क्लास है तो 6:40 पे गेट अप, 6:30 पे गेट अप, दे जस्ट क्विकली दे वांट दे कैन चेंज। और कुछ लोग नाइट सूट में भी आ जाते हैं। मैंने बजट की अब की बहुत बार बोला है कि यार थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए आपको कि फिटनेस वेयर में एटलीस्ट आओ। बट हाँ ठीक है, अगर ना आने से अच्छा है कि आप एटलीस्ट यू आर कंटिन्यूइंग विद योर थिंग, लाइक कि चलो करना है। तो उनका मतलब जैसे सुबह मैं बोलती हूँ कि एकदम से आप उठते बराबर ही हमारी एनर्जी उतनी हाई नहीं होती, राइट। तो एक तो पॉइंट ये है कि आप अगर पहले से फिटनेस में हैं या आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपका एनर्जी लेवल एक अलग पॉइंट पे होगा, तो इट विल नॉट बी वेरी मच स्ट्रगल फॉर यू। बट अगर आप एकदम से स्टार्टिंग, जैसे आप कल से बोलें कि मुझे कल से क्लास शुरू करनी है, तो आई ऑलवेज आस्क देम टू ईट समथिंग बिफोर द क्लास, लाइक कुछ एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, या आई ऑलवेज सजेस्ट कि कुछ मतलब कुछ लाइट शेक या ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ थोड़ा बहुत एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर दे शुड हैव बिफोर द क्लास। या So for doing the Zumba classes, what is more important, like directly doing the Zumba, or you ask them to do some stretching exercises and then getting into Zumba? So how you start your classes? Well, I remember we used to do a lot of stretching before doing these Zumbas, right? Right. So Mahar, there are like warm-up, there are the warm-up songs also, including in the Zumba class itself. We are starting with the warm-up. In the warm-up, there are a lot of stretches we covered. So पहला जो हम म्यूजिक स्टार्ट करते हैं वो warm-up से करते हैं। warm-up में there are a lot of stretching, सिर्फ स्ट्रेचिंग होती है, देयर इज नथिंग स्टेप्स, सिर्फ स्ट्रेचिंग पे हमारा फोकस होता है कि सारी बॉडी, जैसे क्योंकि आप एकदम से सुबह से उठ के डायरेक्ट जुम्बा नहीं कर सकते हो, यू हैव टू वार्म अप योरसेल्फ, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग व्हाट वी डू लाइक बिफोर द क्लास। तो हमारा एक सॉन्ग मैं हमेशा चूज करती हूँ जो वार्म अप सॉन्ग होता है। तो फर्स्ट वी ऑलवेज स्टार्ट विद द वार्म अप सॉन्ग। सो इन द वार्म अप सॉन्ग ओनली वी कवर ऑल द स्ट्रेचिंग पार्ट, लाइक स्ट्रेच, लाइक वार्म अप ऐसे कूल डाउन भी होता है। तो आफ्टर द वर्कआउट वी हैव टू कूल डाउन आवर बॉडी। लाइक जैसे मैं किसी को अपने क्लास में सजेस्ट करती हूँ, बीच में बैठो मत, मतलब अगर आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो बैठो मत, खड़े हो जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, बट आपका बॉडी जो है वो कूल डाउन मोड में नहीं जाना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास वी डू वार्म अप एंड आफ्टर द क्लास वी डू कूल डाउन, like that we follow. Okay, great. Swati, like many were doing this CrossFit, and they were doing that weight lifting and all of these things suddenly stopped because we don't have so much of weight at home. So so how these people must be coping with that? It means what you will suggest to these people that all of the sudden these CrossFit and weightlifting they stopped, and how they should cope up with that thing, and how they can compensate at home. राइट। तो महर, हाँ, जिम, अगर आप जिम की बात करते हो या क्रॉसफिट हम करते हैं, क्रॉसफिट में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं यहाँ पे। जैसे जिम में क्रॉसफिट के लिए अलग से जगह होती है या फेस दिया जाता है, देयर आर इक्विपमेंट्स फॉर क्रॉसफिट, और देयर आर क्रॉसफिट जो आप घर पे भी कर सकते हो। तो अभी तो अगर आप चाहो तो बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो, इंस्टा पे भी आप देख सकते हो कि घर के लिए होम वर्कआउट, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज पीपल अपलोडेड। तो यार अभी भी मैं यही बोलूंगी, जिनको करना है वो अपनी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके Even we can use stairs, right? राइट। तो हमारे पास जैसे घर पे स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, तो क्रॉसफिट मतलब बहुत सारी स्टेयर्स हो गए, या मैं जैसे क्या करती हूँ कि अब हमारे पास अगर डंबल्स नहीं है तो मैं बोलती हूँ यार वाटर बॉटल है, अगर एक कुछ हैवी सा वाटर बॉटल आप ले सकते हो डंबल्स की जगह पे, और स्किप रोप वगैरह, ये सब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को हम लोग वी कैन मैनेज एट होम ऑल्सो, राइट। हाँ, वो उतनी बड़ी मशीनरी
तो मैं पर्सनली मशीनरी वैसे भी थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बट अगर आपको वेट लिफ्टिंग और ये सब करनी है तो देयर आर थिंग्स, मतलब लोग अभी तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं बाहर से ना कुछ कुछ हैवी मतलब स्टोन्स वगैरह वो भी अपने घर पे रख रहे हैं जो देख के कि जिससे वेट लिफ्टिंग हो सकती है। तो वही जुगाड़ वाला काम करना पड़ रहा है अभी तो लॉकडाउन में, जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो वो सब जुगाड़ करके मैनेज कर रहे हैं अपने घर पे वैसा। Okay, then Swati, this lifestyle in lockdown, right? So, what healthy routine one should have for these the days we are going through? Like apart from the Zumba and doing some classes, what in short, what you will tell us that what should be the healthy routine we should have during these staying at home and working also on computer and even kids, like they are also sitting and having these online classes. So what should we do to have a healthy lifestyle throughout the day? या मैं सो इन लॉकडाउन मैंने भी बहुत लोगों से सुना यार बहुत वेट बढ़ गया है क्योंकि कुछ किया नहीं बहुत दिन से, है ना। और मैं अभी मतलब जैसे लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे लोगों जैसे मेरे पास भी कुछ लेडीज़ ऐसे आए हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि लॉकडाउन में अभी हम जिम नहीं जा पा रहे, स्टूडियोज़ नहीं जा पा रहे, अगर इन केस हम ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि यार एटलीस्ट 1 घंटा आप अपने छत पे या आपके पास वॉट एवर स्पेस यू हैव, एटलीस्ट अपना काउंट करके 10,000 स्टेप्स यू शुड कंप्लीट, राइट। तो मेरा सजेशन तो अभी भी यही सबके लिए है कि एक तो हेल्दी ईटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉकडाउन, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे बनाने में आ रही हैं, बिकॉज एवरीबडी इज एट होम, हस्बैंड बच्चे सब घर पे हैं, तो अभी सबका क्या हो रहा है, कभी ये बनाया कभी, मतलब खाने पर सारा फोकस है, बट बाकी चीज़ें क्योंकि सारा दिन हमारा खाना बनाने खाने इसमें ही निकल जाता है। तो मैंने अभी बहुत सारे लोगों को यही मैसेज दिया है कि वो ठीक है जो आप खा रहे हो या कभी कभी ठीक है चीट डे होने चाहिए, बट नॉट एवरी डे। तो ट्राई टू फॉलो द हेल्दी लाइफस्टाइल। और हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब बोलना हाँ आसान है कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, बट कैसे करें, राइट। तो मैं पर्सनली भी लोगों को बोलती हूँ कि यार पर्सनली दे कैन पिंग मी और दे कैन आस्क मी कि क्या मतलब उन्हें खाना चाहिए, उनके उसमें क्या होने चाहिए। जैसे मैं ऑयल अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड कर मतलब नहीं खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। और एटलीस्ट 10,000, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट वॉक 10,000 स्टेप्स इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। मतलब 10,000 स्टेप आपको कैसे भी करके एक दिन में अपने घर में कवर करने ही है, तो वो चीज़ उस चीज़ का ट्रैक रखना ज़रूरी है। और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मैं बोलूँगी कि बंदा सिटिंग जॉब में है तो एटलीस्ट कुछ अलार्म्स लगा के बीच बीच में वॉक करना और स्टेयर्स जाना, स्टेयर्स से ऊपर नीचे होना, वो सब भी ज़रूरी है क्योंकि पीपल आर लिविंग इन अपार्टमेंट, तो स्टेयर्स वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ, कि ऐसा नहीं सुबह से बैठ कर जॉब, मतलब सभी का आजकल अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो मॉर्निंग से आई हैव सीन पीपल लाइक कि सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 7-8 बजे तक हम एक ही पोस्चर में सेम जगह पर भी बैठे हुए हैं, तो दे गेन लॉट ऑफ वेट ऑल्सो। तो मेरा यही बोलना है कि अपना काउंट रखें स्टेप्स का, 10,000 स्टेप्स इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मैं यही बोलूँगी कि अवॉइड ऑयल, मतलब ऑयली फूड थोड़ा अवॉइड करना ज़रूरी है। और सैलड, ये सारे ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब इंक्लूड करना अपने मतलब लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना ज़रूरी है। लॉट ऑफ वाटर, आई ऑलवेज फोकस ऑन वाटर। मतलब मैं इवन जो मेरी क्लास में आते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि अपना पानी किसी और के साथ शेयर मत करो, अपनी 4 बॉटल या 3 बॉटल, वॉट एवर बॉटल यू, हाउ मेनी बॉटल्स यू वांट इन अ डे, आपको कितना वाटर कंज्यूम करना है वो अपना अलग रखो, और यू हैव टू फिक्स कि हाँ ये सारी बॉटल्स मुझे ही पीनी है, तो उतना पानी पीना भी ज़रूरी है। तो वाटर हो गया आपका, लेस ऑयल हो गया, और ग्रीन वेजीज हो गई, और 10,000 स्टेप्स। अगर इतना भी करते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। कभी भी कुछ करती हूँ कि कुछ भी अगर वो मुझे कुछ एक मतलब बोलना चाहिए कि मुझे बहुत वैलिड नहीं लगता अगर कोई रीज़न कि हाँ यार हमने इसलिए छोड़ दिया, आज हमने ऐसे स्किप कर दिया, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि नो, दिस इज़ नॉट द रीज़न। मतलब आपको इस चीज़ के लिए मतलब अपने फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट मी, यू वोंट बिलीव,
after him, after Akash, I never thought कि मतलब you can understand like कि it is very 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 much shocking for me definitely. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब इतनी जल्दी रिडीम बैक करूँगी या फिर वापस आ जाऊँगी. एंड आई थॉट कि यार मुझसे नहीं अब हो पाएगा करके टाइप. बट यू वोंट बिलीव आफ्टर अ वीक, आफ्टर 1 week ओनली आई वॉज बैक. मतलब मुझे पता था मतलब आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग, मैं चेंज तो नहीं कर सकती. दिस इज द ओनली हैप्पीनेस आई हैव कि अगर मैं ये भी नहीं करूँगी तो मुझे नहीं लगता कि आई कैन सर्वाइव. मतलब वो इट वॉज वेरी शॉकिंग. तो मैंने तो यही मतलब आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस महर. मतलब मैं अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के, यू नो दिस इंस्टा लाइव आई शेयर्ड विद माई फ्रेंड्स. आई एम गोइंग टू लाइव, अब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एंड पीपल लाइक यू आर inspiration for many because you did a great job. I always say no, I didn't do anything. This is either regarding the fitness or your passion. Whatever passion you have, you literally should follow that, because if you're happy then you can make others happy, right? है ना. तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत सारी लेडीज़ को भी मैं यही मैसेज देती हूँ कि यार जो भी आपका पैशन है, whatever passion you have, please follow. मतलब आप कैसे भी करके टाइम निकालो बट फॉलो ज़रूर करो उस चीज़ को. बट तो वो जो हैप्पीनेस होगी वो इज अनबीटेबल. Exactly. Awesome. Really, it is really inspiring that if you have passion, that you should follow it. It means giving layman reasons. It's not the way to hide behind these things, right? It is it's a part of it. Well, I'm taking inspiration from you right now. Swati, would you like to tell us some real-time story that you really worked on someone that he or she really transformed their life and they become very healthy and they lost a lot of weight? I guess there was one lady you used to tell. Would you like to share some real-life story? Right. So there are many ladies actually. They changed their life because of this fitness. They transformed themselves totally. But जैसे अभी the recent example of online classes I want to give you. There is one lady called Ashwini, and she was my office colleague. And one day I actually started taking personal training online with her only. So she messaged me and she said I'm going to marry after 6 or 7 months, and Swati, my weight is this much. And this is last year this thing happened. So she messaged me and she said यार मुझे ना इतना मैं कितना almost 20 kg मुझे लूज करना है. ठीक है, जब भी मुझे लोग ऐसे मैसेज करते हैं ना यार 1 महीने में कितना लूज करना. हाँ मतलब obviously they are very much curious to know कि अरे हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हम कितना लूज कर लेंगे, 1 महीने में मैं कितना लूज कर लूँगी, 2 महीने में मैं कितना लूज कर लूँगी. यार ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं. मतलब दिस इज जनरल क्वेश्चन ऑब्वियसली, बट मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ. मतलब मुझे हंसी भी आ जाती है यार. आई कैन नॉट टेल यू कि तुम कितना लूज कर सकते हो 1 महीने में. इट्स योर स्ट्रगल. मतलब आपको ही सारे एफर्ट्स आपको सारे एफर्ट्स डालने हैं. आई कैन ओनली हेल्प यू, राइट. तो दैट टाइम शी मैसेज में यार मुझे ना इतना लूज करना है एंड आई एम गोइंग टू मैरिड. और क्या बोलते हैं मतलब जो उसका फियांसे था, ही वाज आल्सो माय ऑफिस कलीग. सो शी सेड यू हैव सीन हिम आल्सो, यू नो हाउ लीन ही इज. और मुझे मतलब उसके साथ यार थोड़ा लूज करने में हेल्प करो. एंड द नंबर वाज आल्सो लाइक कि मुझे 10+, 15+ ऐसे करके. तो मैंने अश्विनी आई started my personal training. She was मतलब like I'm the personal trainer for her. I started with her, but Meher, I have seen one thing. Whatever efforts मतलब लाइक मैं कुछ भी एफर्ट्स डालूं, बट इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द कैंडिडेट. मतलब जो स्टूडेंट है, इट डिपेंड्स ऑन हर और हिम. बिकॉज मैंने उसका पैशन देखा. शी वॉज लिटरली हैविंग दैट पैशन कि यार मैं कभी लोग मुझे पूछते हैं कितना लूज कर लूंगी, मैं आई नेवर गिव एनी प्रॉपर आंसर. सीरियसली आई ऑलवेज आस्क देम ओनली कि व्हाट इज योर लाइफ स्टाइल, व्हाट इज योर रूटीन. इतना लूज करना वेरी फर्स्ट डे यू आर वेरी एक्साइटेड, ठीक है. फिर
क्या होता है 2 दिन आने के बाद 4 दिन गायब हो गए, फिर 2 दिन आए, फिर 4 दिन गायब हो गए, लाइक दैट। तो मैं कभी किसी को आंसर नहीं करती, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि पहले मैं देखूंगी हाउ कंसिस्टेंट यू आर, कितना कंसिस्टेंसी है, कितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो, इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट अकॉर्डिंगली। तो मैंने जब अश्विनी के साथ शुरू किया तो शी वॉज ऑलमोस्ट इन 80 kgs. She was in 80s and then after 6 months, but those 6 months she never missed the classes. She never ever missed the classes. If she missed also, she was messaging me personally, आज यार कल मैंने क्लास मिस कर दिया, मुझे बताओ मैं मतलब वीकेंड में क्या कर सकती हूँ, बिकॉज वीकेंड आई गिव ब्रेक, बिकॉज एक दिन मैं बोलती हूँ ठीक है जो खाना है वो खाओ, जो करना है, लेजी डे होना चाहिए, तो ठीक है आप एक दिन कर सकते हो, बट शी वॉज वेरी मच consistent. Regularly she was following me, whatever I was asking she was doing, and you know in 6 months only she reduced almost 18 kg. 18 kg. She transformed herself totally. मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था मतलब अश्विनी का, तो शी वॉज टेलिंग अबाउट हर फिटनेस जर्नी। तो यहाँ पे मतलब देयर आर लॉट ऑफ लेडीज व्हेन आई वाज टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस आल्सो, पीपल वर लाइक, लेडीज वर लाइक कि बहुत मतलब जो कंसिस्टेंट थे और जो रेगुलरली आ रहे थे और जो गाइडलाइंस थी सब फॉलो कर रहे थे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिन्होंने चूज किया था, तो दे ट्रांसफॉर्म देयरसेल्फ। So you have to be very consistent and regularly you have to do. There is nothing a choice like कि आज कर लिया, कल नहीं किया, कल कर लिया, परसों नहीं किया, like that. You have to make a fitness your daily part of life. Then only you will be, get the best results. Okay, Swati. So on this note, I would like to. देखा है ना मेहर, मैंने आप you also did a great job, you remember. But I lost everything. हाँ sorry. I tried, but yes, I'm back to zero again. No, it's because I think you left, right? But like you left it, the fitness thing totally. That's what I said. Now you have to do continuously. Then only. Message to all the ladies like who are creative and talented, but they are not able to come up and they are not able to follow their passion. Somewhere or the other, they are lagging. They don't have the family support, or they are not self-motivated either. So, what message would you like to give to these ladies that how to utilize this precious time? Because after becoming mother, they feel like that nothing is left. Well, you can relate to it, right? Because of the responsibilities and all. Very nice question. Actually, I also thought I really want to give this message. Being a mother, there are a lot of things, being a mother, it's difficult. I totally understand. Yeah, you really need a family support. That also there. But I would say because of you are a mom, your strength is double, When I became a mom, I told my mother, you won't believe, I was literally crying. I was crying because I felt, I came to know the meaning of mom, how like our mom gave us a beautiful life and कैसे हमें ग्रो अप किया, कैसे हमें बड़ा किया, और when we become a mother, हम जैसे मतलब अगर आप मेरी बात करो तो आई एम लाइक जो एकदम फुल ऑन लाइफ और पार्टी गर्ल टाइप, मतलब मैं आई एम लाइक दैट। तो मतलब जब मुझे when I was pregnant, no, even like seriously तो प्रेग्नेंट है, मतलब अब तेरा हो गया, मतलब ठीक है यार, अभी तो ना हाँ देयर आर लॉट ऑफ लेडीज देयर लाइक कि अभी पर प्रेग्नेंट है ना, बस अब ठीक है, तेरी लाइफ यहीं पर ही, तेरा ये वाला पीरियड तो जस्ट ओवर। बट मैंने तभी आई डिसाइडेड एंड आई ऑल्सो वांट टू गिव दिस मैसेज टू एवरीबडी, डोंट फील लाइक दिस कि अभी बीइंग अ मदर यू कैन नॉट डू इट, बीइंग अ मदर यू कैन लिटरली डू इट एनीथिंग, मतलब योर स्ट्रेंथ इज डबल। Whenever I see my daughter
मतलब मुझे इतना आई लिटरली फील प्राउड कि अभी वो जब भी मैं क्लास करती हूँ ना, वो शी मोस्टली शी इज फॉलोइंग मी एंड वो मुझे देखती है। अभी जब भी शी इज ग्रोइंग अप तो वो मुझे देख रही है, वो मतलब उसे भी पता चल रहा है कि यार हाउ आई एम मतलब मैनेजिंग थिंग्स विद हर। बहुत मैनी टाइम शी गेट्स क्रैंकी कि मतलब क्लास के बीच में भी ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत बार ऐसा स्ट्रगल होता है कि एक्चुअली द प्रॉब्लम इज उसको करना है, मतलब उसको सीखना नहीं है, अभी उसको सिखाना है। बिकॉज वो मुझे बचपन से वैसे ही देख रही है कि मतलब माई मदर इज टीचिंग, है ना, तो माई मदर इज नॉट फॉलोइंग इवन बट शी इज टीचिंग। तो उसको भी यही उसके दिमाग में है कि मुझे सिखाना है। तो मैंने टाइम से आस्क मी मम्मा आप बैठ जाओ, मैं सिखाती हूँ, मैं बताती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ आपको सीखना पड़ेगा, नहीं उसको सीखना नहीं है, उसको सिखाना ही है अभी सीधे। तो आई वुड से कि देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल बीइंग अ मदर, यू कैन डू एनीथिंग, यू हैव टू फाइंड। अभी बहुत सारी लेडीज को ऐसा होता है, हमारे मतलब हमारा तो कुछ अब बचा ही नहीं है यार, हम तो अभी बस बच्चों में ही हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, अभी तो हमें कुछ नहीं करना, बस अभी गिव अप कर दिया है बहुत सारे लोगों ने ना। बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं कि यार बीइंग अ मदर वी कैन नॉट डू इट। But I would say being a mother, you have to manage things, you have to make your family understand कि what is important for yourself. Because अगर आप जुम्बा की बात करते हो तो इन आर सोसाइटी और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी अभी लोगों को पता चल गया है कि क्या है क्या नहीं है। एंड आई वॉज इन अ मेट्रो सिटी, तो मेरे लिए तो आसान था करना, ठीक है, आसान करना इन द सेंस कि मेरे लिए जिम में स्टूडियोज में ऐसी जगह पे जाके सिखाना और यू नो हमारी जो जुम्बा वेयर ड्रेसेस हैं या जो भी मैं पहनना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। बट देयर आर लेडीज स्मॉल टाउन में हैं, वहाँ पर अलाउ नहीं है उनके घर में ये सब करना पहनना। तो मेरा पॉइंट वही रहता है कि हाँ फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए महर, बट यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर हैप्पीनेस। अगर आप उन्हें बता ही नहीं पाओगे कि आप किस चीज़ में खुश हो तो दे कैन नॉट सपोर्ट यू, राइट। तो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज योर पैशन एंड यू वांट टू फॉलो दिस पैशन। एंड लाइक जैसे जुम्बा है या डांस है तो मैंने उसको अपना करियर चूज किया था, तो वैसे दे हैव टू मेक देयर फैमिली अंडरस्टैंड, दे हैव टू मेक देयर अदर्स, मतलब जो भी उनकी लाइफ में है लोग, उनको बताना पड़ेगा कि यार ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको नहीं छोड़ सकती। तो दे विल स्लोली दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। बीइंग अ मदर ऑल्सो दे कैन डू एनीथिंग, दे हैव टू मतलब उनको इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि यार अभी मैं आई एम अ मदर, मुझे अभी ये नहीं करना है। देयर इज मैं हमेशा बोलती हूँ एज इज जस्ट अ नंबर, राइट। तो अभी ऐसा भी बहुत सारे लोगों का सोचना होता है गर्ल्स का कि यार अभी हम वी आर 30+, वी आर 35+, 40+, तो अभी यार अब ये हमारा दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी वट एवर पैशन यू हैव जस्ट फॉलो इट, स्टार्ट फॉलोइंग। 1 लोग से 2 लोग से 4 लोगों से शुरू करो। अगर इफ़ यू हैव दिस यू नो कैलिबर कि आप करना चाहते हो तो वो बोलते हैं ना कि सब चीज़ें अपने आप सपोर्ट करने लगती हैं, राइट। तो यू हैव टू फाइंड योर पैशन एंड यू हैव टू मेक योर सोसाइटी योर फैमिली अंडरस्टैंड कि दिस इज योर हैप्पीनेस। एंड बच्चों को बीच में बिल्कुल मत लाओ। once you start doing, फैमिली में अपने आप लोग सपोर्ट करेंगे तो दोज थिंग्स ऑल्सो ऑटोमेटिकली यू नो हैंडल्ड ऑटोमेटिकली। तो ऐसा होता ही है, मतलब बीइंग अ मदर यू कैन डू इट, बीइंग अ मदर योर स्ट्रेंथ इज डबल। सो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि इफ यू आर मदर देन जब तो ज़रूर जो भी आपका पैशन था जो आपने छोड़ दिया वो ज़रूर फॉलो करो। Exactly. So it is very important to first to believe in yourself and then you everybody you have to believe in yourself. Exactly. You can do it, right? Exactly. बहुत Then सारी only लेडीज हमारे शुरू ही नहीं करना चाहते, वो करते ही नहीं है, मतलब ये सोच के कि यार नहीं हो सकता, अभी तो बच्चे परेशान करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, वो पहले से ही बहुत सारी स्टोरीज उनके दिमाग में होती हैं। बट यू हैव टू गिव अ स्टार्ट, एटलीस्ट स्टार्ट करो। बट स्लोली योर किड्स विल ऑल्सो कोऑपरेट यू। जब व्हेन दे सी कि द मदर इज डूइंग समथिंग, आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो हमें देखते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो व्हेन दे ग्रो अप वो हमसे ही सीखेंगे ऑब्वियसली, और वो हमें डेफिनेटली सपोर्ट करना शुरू करते हैं। बट यू ओनली द वन हु हैव टू गिव अ पुश योरसेल्फ
कि हमें करना है. हम वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन ना, वी कैन नॉट ब्लेम आवर हस्बैंड, वी कैन नॉट ब्लेम आवर फैमिली कि हम इनकी वजह से, या वी कैन नॉट ब्लेम आवर किड्स कि हम इनकी वजह से नहीं कर पाए. यू हैव टू गिव अ पुश योरसेल्फ. एक पुश दे के जरूर देखना चाहिए, मतलब ट्राई जरूर करना चाहिए, आई वुड से. Exactly. Thank you, Swati, for giving such a lovely message to all the ladies out there, and giving those positive and the kick to stay healthy and to have a healthy lifestyle. And it was lovely talking to you, and wishing you all the best for all your Zumba and all the fitness training classes. And so, and nice Thank you seeing you so after much. such a long time. And Instagram is a blessing to see each other and talking to each other like this. It's, so, Right. so lots of love for your daughter, and wishing you all the best. Bye, Swati, and we will be keeping in touch. Okay, then, bye bye. Good night. Thank you, Mahal. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.